Cool, cool. Finally, we are live. हाँ After so much of struggle. और Parvata, कैसा चल how's रहा your है quarantine? लॉकडाउन Yeah, चल to रहा be है yeah, I'm really fucked up in this quarantine. Yeah, like I really don't know what to do and what not to do. I'm just sleeping and wasting my time and telling others that I'm doing a lot of things. So, or how about yours? Like, चल रहा है हम तो फिल्में बनाने वाले हैं लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं guys, if you can listen to us, then you can please comment one if you are audible. Guys, if you can listen to us, then you please comment one or anything like that. आ रही है भाई आरू जैन जी का आ गया है मेरे Yep, भी कह रहे हैं okay. Stop lying. Okay. Sorry, Goransh. So, Ishan, we already have a lookalike audience. Like majority of my audience know you, and but still, if you want to introduce yourself, just tell me something like around 30 seconds introduction about yourself. 30 सेकंड में ही बताना है तो मैं तो ऐसा आदमी मेरा तो बेसिकली आई एम अ फिल्म मेकर मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ और इसके अलावा आई एम अ फोटो जर्नलिस्ट मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ आई एम अ बैडमिंटन प्लेयर ऑल्सो मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा हर चीज में अच्छा हूँ ये है अपना And about your work? आप वर्क तो है आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड मैं अभी शॉर्ट फिल्म्स ही बना रहा हूँ क्योंकि अभी इतना मैं टाइम दे नहीं पाया फिल्म मेकिंग को अब 12th खत्म होने को आई है so next my target is to make a feature film so let's see finger crossed for a feature film now When I was in class 9th, I was just figuring out कि मैं करूँ क्या life में, and you started making short films. So आप भी इंट्रोड्यूस करो अपने आप को So basically, I'm a very dumb kid, according to my teachers and parents. And just like you, I'm not interested in reading my NCERT books. But still, I'm figuring out a hell lot of things. Like right now, I'm doing public speaking and creating content, and collaborating with some influencers who are doing the same things. Like I recently collaborated with Raj Shamani. You already seen that video. And before that, I had a video with CS of Rajasthan. So I'm just figuring out and hope it goes well. If I can make to the top while doing speaking and creating content. So those who are watching it, we will divide this live session into 3 sections. First, we will talk about the real side of cinema. Like I have some pretty questions for him. In second section, we will talk about the content, like how the content works and what is one thing that required to make good content, especially in this industry. And third, we will discuss about the web series, the future of web series and short films in India. Yeah, Ishan, to be very honest, I have this one doubt always, is that what is that basic difference between director and cinematographer? बेसिकली डायरेक्टर वो है जो फिल्म में घुस जाता है उस फिल्म के लिए डायरेक्टर एक्टर भी है द डायरेक्टर इज बता रहा है एक्टर्स को क्या करना है अगर एक्टर्स से डांस नहीं बता रहा तो डांस करके बता रहा है अगर कैमरामैन सही कैमरा से शूट नहीं कर पा रहा तो वो एंगल बता रहा है तो डायरेक्टर खुद को फिल्म में ले लेता है और सिनेमाटोग्राफर का जॉब है जो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो चाहता है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शूट करता है सो बेसिकली जो अपन फिल्म देखते हैं लोगों को लगता है कि डायरेक्टर ही शूट कर रहा है डायरेक्टर के हाथ में ही कैमरा है नहीं जैसे पहले डीओपी कहते थे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अब उसी के लिए सिनेमाटोग्राफर कहते हैं सो सिनेमाटोग्राफर है जो शूट करता है फिल्म को एज अ गाइडेड बाय डायरेक्टर और डायरेक्टर जो है वो गाइड करता है सबको कि कैसा करना है
तो जो डायरेक्टर होता है उसको सब चीज आनी चाहिए, तभी वो डायरेक्ट कर पाएगा सबको. इफ अ डायरेक्टर इज गुड इन एक्टिंग बट ही डोंट नो एनी टेक्निकल्स इन कैमरा, तो वो क्या करेगा? अगर सिनेमाटोग्राफर को डाउट हुआ तो वो फिर डायरेक्टर से ही पूछने जाएगा, पर अगर फिर डायरेक्टर ही जवाब नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? So you are a director. You are a director. Yeah, I'm a director, but I can And act too. I can, yeah. so you're multi-talented. So when you start directing films, and how? And how? मैं 9th में था तब वन ऑफ माय सीनियर अंशुल पानेकर केम दैट ईशान एक फिल्म बनाते हैं. सो आई थॉट ठीक है करके देखते हैं, बिकॉज आई वाज डूइंग फोटोग्राफी सिंस 7. तो मेरे को आइडिया था कि हाँ कैमरा क्या है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं ये चीज भी. तब इतना नॉलेज था नहीं, तो मैंने तो कैमरा उठाया और फिल्म बना ली. मतलब ना कुछ टेक्निकल का इतना कुछ आइडिया था और ना उस टाइम इतना कुछ पता था. तो उन्होंने ही स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया था, उन्होंने सब बताया. आई वॉज द वन हु इम्प्लीमेंटेड इट. आई हेल्प देम कि हाँ इसको चलो इम्प्लीमेंट करते हैं. सो वी हैड अ शूट ऑफ 7 days. 8 मिनट की फिल्म बनी. आउटपुट 8 मिनट का है और एडिटिंग में 2 दिन लगे. तब पता चला अरे यार ये 8 मिनट की फिल्म बनाने में इतने दिन लग गए, तो एक 2.5 घंटे की फिल्म को बनने में कितना टाइम लगता है. तो वहां से ये जर्नी चालू हुई. धीरे धीरे करके फिर मैं फिल्म के बारे में स्टडी किया क्या है. आई टुक वर्कशॉप्स. फिर मैं खुद ही जब 1 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा मालनों पे, जो औरतें सब्जियां बेचती है स्ट्रीट पे. तो मैं अकेला कैमरा ट्राइपॉड ले गया और सब्जी मंडी चला गया. आई स्पेंड 5 to 6 days देयर. मैंने अपने आप शूट किया, मैंने करा कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ. मैंने खुद ही ने शूट किया, मैं खुद ही ने एडिट किया. तो अभी तक मैं जो भी काम करते हुए इंडिपेंडेंट ही आया है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में इतनी टीम की जरूरत पड़ती नहीं है. और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो टीम से मेरे को सपोर्ट मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं. So I am looking forward कि आगे अच्छी टीम मिले तो we can do the work together. और फीचर फिल्म में तो absolutely टीम तो चाहिए, आप अकेले फिल्म बना नहीं सकते. You need an editor, you need actors, you need assistants, you need many people. आपका एक पूरा क्रू होना चाहिए for a feature film. तो नेक्स्ट टारगेट जैसा मैंने कहा, एक बार ये खत्म हो पीरियड तो I am planning for a feature film. So let's see क्या होता है. Yeah, to be very honest, when the first time I saw you, I was really jealous of you. Because I was barely getting 50-60%, and a boy in the same school doing such insane things. तो मैं कौन सा 90-95 लाया था, मैं आपके जितना ही था. But still you are doing something else. तो आप भी तो कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो. डीवी गुप्ता जी है, अगला टारगेट तो गहलोत जी लग रहे हैं मुझे. Let's hope for Modi. ठीक है, मोदी जी. So Ishan, I have no idea about the film industry and all these kind of related to stuff. So there is one DM I got that what is the black side of the cinema industry? Like how it feels behind the camera. What is the real truth face of the industry? इंडस्ट्री में मोस्टली जो सब नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि आसान है, क्या फिल्में तो बना रहे हैं, तो केवल मेन जो आउटपुट बन रहा है वो देखते हैं. वो उस आउटपुट के कहानी नहीं जानते कि क्या स्ट्रगल किया क्या डायरेक्टर. आज के टाइम पे तो और भी स्ट्रगल हो गया. जैसे पहले तो आप फिल्म बना लेते थे तो जो शूटिंग होती थी उसके बारे में अपने को पता ही नहीं चलता था. आज जब जैसे कोई भी शूटिंग करने आया, भाग्यश्री की शूटिंग जयपुर में हुई, तो वो जब से जयपुर आए तब से चालू कि हाँ यहाँ पर है, तो वो एक शूटिंग में एक वो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है. तो स्ट्रगल तो एक्टिंग करने में भी है और फिल्म बनाने में भी है. स्ट्रगल हर चीज में है. आप सोचो बिना मेहनत करके सब कुछ हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है. अपने को मेहनत करनी है और किस्मत भी इम्पोर्टेंट है ही साथ ही साथ. पर ऐसा नहीं कि केवल किस्मत पे ही डिपेंडेंट रहो, हाँ भगवान कर लेंगे, नहीं, आपको मेहनत भी करनी है. और स्ट्रगल तो मैं कहूँगा हर चीज में है. ऐसा नहीं कि केवल इसी में है या कंटेंट में ही है. स्ट्रगल हर चीज में. अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसके लिए वहाँ भी स्ट्रगल है. Yeah, but I'm talking about the real side. Like
like we all know the struggle, but there are some factors which is being avoided by the public or not being shown to the public. So I'm talking about these things. या तो ये हो सकता है कि जो एक्टर्स या जो कास्ट है उनको जो फिल्म में लिया जाता है तो क्या फेस करते हैं जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के अलावा भी क्या क्या फेस करते हैं वो ना अपने को पता है, ना मोस्टली किसी को पता रहता है। वो केवल जो इंटरव्यू दे रहा है उसको पता है और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पता है। तो मोस्टली वो एक्सपीरियंस ना कोई शेयर करता है क्योंकि वो एक नेगेटिव फेज आ जाता है, तो वो लगता है वो अपने तक ही सीमित रखता है। तो अगर जो उस दर बैठा है उसी को ही पता है कि क्या नेगेटिव साइड है अच्छे से, ये बाहर आते आते बात घूम जाती है, बात फैल जाती है अलग। तो जो वहाँ बैठा है उसी को पता है कि नेगेटिव साइड क्या है। And is there anything you faced till now? Like that? मैंने ऐसा तो कभी फेस किया नहीं। मैं तो बस यही फेस किया जब कैमरा उठाया था पहली बार, तो पढ़ाई में अच्छे थे नहीं, वही थे तो लोग ही कहते थे, वो तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। फिल्में बनाने गई तो शॉर्ट फिल्म बनाई, उसमें भी दिक्कत की, क्या 2-3 मिनट की फिल्में बना रहा है, ये कोई फिल्म होती क्या, पिक्चर देखते ही खत्म हो गई। तो ऐसे ताने तो बहुत सुने हैं और वो तो जीवन भर सुनते ही रहना है, उस पर ध्यान देना नहीं है, उसको आपको एज अ पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना है। So this remind me of a quote that dogs will always going to bark. So just focus on your work and stop throwing stones at them. तू बता तेरा कंटेंट से और ये सब कैसे चालू हुआ? और आई जितना नो यू वर अ क्रिकेट प्लेयर, आई थिंक तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट से कंटेंट तक की जर्नी कैसे चालू हुई? So yeah, to be very honest, मैं बहुत confused boy हूँ. Like I'm still confused what to do and what not. So while I was playing cricket, everybody used to feed up the negative vibes inside me. Like सब क्रिकेट खेल रहे हैं यार, तेरा तो बहुत मुश्किल है and all these kinds of stuff. So I was really fucked up and confused. So, but still I started getting interested in, I don't know from where I start getting interesting in public speaking. I used to follow influencers like Jay Shetty, Ty Lopez and all these kinds of people. So then I started that public speaking is something I'm very, very interested in. So in 11th class, so before that I was a very shy boy. Like मुझसे क्लास में भी आंसर नहीं दिया जाता था, मुझे पता भी नहीं था टीचर मुझसे क्यों पूछते थे। So but in 11th class I decided that no matter what I will answer as many as answer I can in the class, no matter कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा। So that's from where I started doing public speaking, and then I joined a local Toastmaster club in my in my around area, near area. And yes, then I started creating content, connecting with people who are doing same things, and yeah, just getting off. चलो बढ़िया। मेरे को ये सवाल है, यू बीइंग अ कंटेंट राइटर, तो डू यू थिंक दैट कंटेंट इज द किंग? Yeah, I think content is the king. Like there are so many factors depend, like the audience you are targeting, but no matter what, like जैसे किसी भी एक्टर को ले लो, अगर स्क्रिप्ट गंदी हुई तो मूवी नहीं चलती। So I think content is the king. Quality content is something I am focusing on. So being a content writer, do you think just कि quality content बना लिया तो काम खत्म, कंटेंट अच्छा है तो फिल्म हिट? यू थिंक ऐसा है कि उसके बाद नहीं, वी नीड टू वर्क ऑन द कास्ट ऑल्सो, उसका इम्प्लीमेंट कैसे करे, उसको कैसे प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट करे? So you know more things than me regarding the cast and all these kinds of things, but I believe like I am doing personal branding right now, and in my journey, content creating plus content distribution, both should be the balanced one. And like if I'm creating content but I'm not distributing it to the larger audience, then I will fail to create my brand.
So I think I should ask this question. Like the cast and all this kind of, should it is important or not? मेरे लिए तो वो दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है, कंटेंट एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन. अगर आपके पास कंटेंट है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, देन वो मेहनत और वो सब मतलब नहीं है. क्योंकि आज का टाइम इज मोर कमर्शियल. लोग कमर्शियल एस्पेक्ट से फिल्म बना रहे हैं. वो टाइम गया जब एंटरटेनमेंट पर्पसेस या उसके लिए था. बट कंटेंट शुड बी गुड, इम्प्लीमेंटेशन शुड बी बेटर. कंटेंट तो है और आपको इम्प्लीमेंट भी उसको उसी तरीके से. ऐसा नहीं कि कंटेंट अच्छा है तो चलो हो गया, काम खत्म. अभी तो आपका काम चालू हुआ है, इसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करना है. So Ishal, you started in class 9th, and right now your films been featured in UK, California, and many other countries. So if someone like me who is interested in film direction and all this kind of stuff, so from where I can start? Like I got plenty of DMs regarding this. See, आज के टाइम पे everyone has a smartphone. Agree. तो आप स्मार्टफोन लीजिए. जरूरी नहीं कि फिल्म बनानी है तो सीधा निकॉन Z6 कैनन मार्क में जाना है. नहीं, स्टार्ट विद स्मार्टफोन. आपके पास रिसोर्सेज है, आप बनाइए. जरूरी नहीं है कि फिल्म बड़ी होनी चाहिए. स्टार्ट विद 1 और 2 मिनट फिल्म. वो भी नहीं, उससे पहले भी आप वीडियो लीजिए. जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फिल्म बना लेंगे. स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. अपना एनवायरनमेंट, आप क्या शो करना चाहते हैं, स्टार्ट विद वीडियोस. एंड आप धीरे धीरे आप जैसा करते रहेंगे, यू विल कम इनटू इट. And how did you get? Yep. No, say. आज के टाइम पे तो फिल्म जो वेब शोज और हम जो देख रहे हैं, दे आर मोस्टली मेड फ्रॉम फोन्स ओनली. लाइक जो है गियर्स पे इतना जाते नहीं है. एंड डायरेक्टर यूज आईफोन एक्स बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट दैट इस कैमरे से हमारा काम हो जाएगा, तो व्हाई वी शुड गो फॉर बिगर. तो एक बजटिंग अगर आपका इश्यूज है तो यू कैन शूट विद अ स्मार्टफोन विद अ बेटर कैमरा ऑल्सो. And if someone is not having that smartphone or well equipment, but still he or she wants to do something in this field, from where he can start? Whatever you have, start with whatever you have. अगर Nokia 1100 है तो उस कैमरे से भी चालू कर लीजिए. अगर वो अंदर है कि नहीं यार बनाना है, तो आदमी Nokia 1100 से भी फिल्म बना लेगा. उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल जो भी आ जाए उसके लिए कुछ नहीं होगा. उसको फिल्म बनानी है तो Nokia 1100 से भी बना सकता है और OnePlus से भी बना सकता है. So you need to start. Like this is the first step. Yeah. And how did we can explore in this field and get opportunities? एक्सप्लोर भी, जैसे ये फील्ड बहुत बड़ी है. यू हैव मैनी, मतलब डायरेक्टर्स है, एक्टर्स है, राइटर्स है, साउंड एडिटर्स. बहुत अंदर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो पहले तो आपको ये क्लियर होना है कि आपको किस फील्ड में जाना है. आप सोचते हो कि मैं सब कर लूँ, नहीं. आप एक फील्ड पे टारगेट रखिए. अगर आपको एक्टर बनना है तो आप एक्टिंग का करें. अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो गो फॉर डायरेक्टर. इफ यू आर गोइंग फॉर कैमरामैन तो गो फॉर सिनेमाटोग्राफी. तो पहले आपको वो चीज क्लियर करनी है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर आप उसमें करें. आप रिसर्च किए, जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो काम देखो. क्योंकि जितना देखोगे उतना ही सीखोगे. मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ो. पढ़ने से तो आदमी कभी नहीं सीख पाएगा. आदमी जब तक देखेगा नहीं, पढ़ने से आदमी सीख रहा होता तो कुछ और. पर आदमी जब देखेगा तो सीखेगा. किताबें पढ़ना, और ये एक ऐसी फील्ड है, ये किताबी ज्ञान नहीं है ये फील्ड. ये आप देखोगे, जितना आप देखोगे उतना ही आप गेन कर पाओगे नॉलेज. So the more you practice, the more you learn. Yeah. And how did you get opportunities? For photography or for filmmaking? Both. See, photography तो मैंने फिर 5th और 6th से चालू कर दी. My father is in media, तो इवेंट होते थे तो मैं उनके साथ चले जाता था. और मेरे को अभी भी याद है, I started photography from a Fuji film camera. एक छोटा सा डिजिटल का आता था, मैंने उससे चालू करा था. फिर then my father bought a DSLR. अब वो भी 6-7 साल पुराना हो गया है. इट्स निकॉन D3100. अभी भी मैं मेरे पास पड़ा है, मैं वही यूज करता हूँ. सो आई डिड फोटोग्राफी फ्रॉम दैट. और फिल्म मेकिंग भी मैंने उसी से स्टार्ट किया. एट दैट टाइम मेरे पास फिल्म मेकिंग कैमरा था नहीं,
सोनी एल्फाई उस टाइम इतना था नहीं, तो मैंने निकॉन से ही फिल्म बनानी चालू करी और अभी भी मैं वही यूज करता हूँ, क्योंकि उसी कैमरा ने मुझे यहाँ आज तक पहुँचाया, तो वो कैमरा तो साथ रहेगा ही पूरे टाइम। So, okay, you have to start. That's the main point. If you really want to do something in this field, and then the opportunities will definitely create by itself. या And how many films did हो you? भी सकता है कि आप चालू करो, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले तो गिव अप कर देते लोग। जरूरी नहीं है आप चालू करते आपको काम मिलेगा, आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो पेशेंस तो होना ही चाहिए। वो तो आप जिस फील्ड में भी जाओ पेशेंस होना चाहिए। आप सोचो कि मेरे जाते ही मेरे को काम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यू नीड टू बी पेशेंट। So my mentor always say one thing is that no matter what you are doing, start making use of social media. Like for example, I am doing public speaking. Yeah. So मैं रोज के 10 या 5 speakers को DM करता हूँ. Like I used to DM that please see my work and all this kind of stuff. And people always ignore these kinds of messages because they hate spamming from another or someone. But I just followed this advice for 2 months and I'm still following. And that's how I contact Raj Shamani. Like this is really insane. Like whatever you are doing, just make use of social media. Start DMing people about your work. Like if you're providing value to someone else, like I gave a solution to the problem of Raj Shamani. That's why he gave the chance of recording a podcast with him. So I noticed that when you give more and expect less, things will turn like a magic. So all of you who are live today, start making use of social media. Start DMing the people who are doing the same kind of stuff or you admire the most. Because as my mentor say, if you're not making use of social media, you're gonna lose in the long term game. So like Ishan is doing photography right now, or if someone is interested in photography, so start DMing people who are doing photography. This is a nice way and a good way to make opportunities in any field. That's what I believe. So Ishan, let's come to the web series stuff and okay, let's take some questions asked by the audience. Okay, so there is one question is that I missed it. 1 minute. Thank you so much. वो क्वेश्चन बहुत ऊपर चला गया आई गेस. फेवरेट कैमरा, ड्रीम कैमरा, गौरान जी दिला देंगे तो मेरा तो फेवरेट रेड है. गौरान जी दिला दे तो अच्छा रहेगा. सस्ता है, ज्यादा महंगा है नहीं, 40 लाख से चालू होता है. गौरान जी ड्रीम कैमरा तो रेड है. एड्रेस मैं भेज दूंगा आपको, तो आप लॉकडाउन के बाद भिजवा देना. So Ishan, there is one question that how cinema industry is infected or is affected by this COVID-19. कोविड-19 से तो काफी अफेक्ट हुआ है. शूटिंग रुक गई है एंड पीपल आर नॉट एबल टू वर्क. चलो एक्टर्स और डायरेक्टर्स के पास तो पैसा है तो वो जी लेंगे. जो लोग डेली वेज पे काम कर रहे थे, लाइक और अगर एक फिल्म बन रही थी तो उस फिल्म में जो कास्टिंग के लिए उनके लिए कोई हेल्प कर रहा था, जो लाइट साउंड उनमें डेली वेज के लिए काम आता था, उनके लिए बहुत दिक्कत हुई है क्योंकि उनकी रोजी रोटी और वो सब उसी से ही आता था. तो कोविड-19 ने न केवल ये फील्ड मतलब हर फील्ड पे अफेक्ट हुआ है और यही दुआ करते हैं कि ये जल्दी खत्म हो और अपनी लाइफ वापस चालू है और वो भी वापस काम कर सके. So let's come to the content work. Like I've been in this field for a year now, but I have no idea how films take content, how they decide content.
सी पहला काम होता है राइटर का ही, फिल्म लिखने का। उसके बाद वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से अप्रोच करता है कि ये है, अपन इस पे अब क्या कर सके। सो द की पर्सन बिहाइंड द फिल्म इज एब्सोल्युटली अ राइटर ओनली। तो राइटर, इफ यू वांट, अगर तुम इस फील्ड में आना चाहते हो तो यू कैन अप्रोच सम डायरेक्टर्स, लाइक यू सेड सोशल मीडिया का हेल्प लेके यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद सम स्पीकर्स। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, if you want to come in this filmmaking field also, so you can approach some directors, and there is a website, I don't remember the name, एक script, वो basic, आप अपनी script सबमिट करो एंड आप उस स्क्रिप्ट को रजिस्टर करा सकते हो। तो बाय चांस आपका वो स्क्रिप्ट किसी ने कॉपी कर लिया तो यू कैन स्यू हिम, और आप केस कर सकते हो। तो एंड वो काम अगर कोई फिल्म में वो सेलेक्ट होता है, सो दे विल कॉल यू। तो आप अगर स्क्रिप्ट लिखते हो और फिल्म आप चाहते हो कि आपकी स्क्रिप्ट पे फिल्म बने, तो आप रिसर्च करें। मैं वो एक स्क्रिप्ट आप सबमिट करो, पेशेंस है, पेशेंस सबको 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में रिवर्ट आ सकता है। अगर फिर वही है काम का क्वालिटी और वो कैसा होता है, पर वही है, इनिशिएट करना है आपको। आप सोचो कि नहीं अभी बाद में अपने आप होगा, ऐसा नहीं है। So what is that one thing you see when it comes to the script? Like in short films. फॉर अ शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट कैन, मतलब बहुत किसी पे भी आप, मेन ऐसा नहीं है कि आप एक फिल्म जो होती है, ऐसा नहीं कि केवल कॉमेडी हो या एक्शन हो। आपकी जो फिल्म है वो एक हर इमोशन बताना चाहिए उसको। उसमें एक्शन भी हो, उसमें कॉमेडी भी हो, उसमें हर चीज होना चाहिए, तो ही लोग एंजॉय करेंगे। अगर आप केवल हंसाते रहोगे, वो हंसते हंसते भी बोर हो जाएंगे। और आज ऑडियंस के पास इतना ऑप्शन है, एक पसंद नहीं आया चलो हटाओ, दूसरा पसंद नहीं आया, नहीं तीसरा। ऑडियंस के पास कमी नहीं है कंटेंट देखने की, आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है कि आप क्या बना रहे हो। तो इसीलिए मेरे को लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, वेब सीरीज आई, क्योंकि पीपल वर बोर्ड फ्रॉम फिल्म हफ्ते में एक बार आती थी एंड वो भी पसंद नहीं आया। तो वेब सीरीज इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने पहले सर्वे किया कि अपन इंडियंस आर वाचिंग वेब सीरीज ऑफ यूएस एंड बाहर की वेब सीरीज, जैसे जीओटी हुआ या ये सब वेब सीरीज काफी हिट थी। तो उनको अगर यही लगा होगा कि क्यों ना इसको अपन इंडिया में इनिशिएट करें, तो फिर वेब सीरीज आई है। वेब सीरीज, और आज के समय में तो वेब सीरीज तो क्रेज गजब हो ही गया है, जो कि मेरे को लगता है आने वाले के टाइम पे सिनेमा और उसके लिए गजब कंपटीशन है, क्योंकि वेब सीरीज के लिए काम भी बहुत मिल गया है लोगों को। जितना कास्ट क्रू एक फिल्म बनाने में लगता है, उतना ही कास्ट क्रू एक वेब सीरीज बनाने को भी लगता है। और वेब सीरीज भी कितने प्लेटफॉर्म सारे आ गए, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, एमएक्स प्लेयर है, बहुत सारे हैं। तो काम की कमी नहीं है, आप काम चालू करो। लोगों को लगता है हमें कहाँ काम मिलेगा, ऐसा नहीं, काम तो मिलेगा ही। आप चालू करिए, काम आपको डेफिनेटली मिलेगा। Like I can see this in my home itself. Like before this quarantine, my family members, especially mom and dad, used to watch films around 80s or 90s. Like बहुत पुरानी films देखते थे. But in this quarantine, they are switching to web series. Like yesterday, they are watching that Special Hobbs. So मैं मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगा कि क्या हो रहा है यार। So do you think that web series or this shortest film format will take over the जो बड़ी पिक्चरें होती हैं in near future? ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है, ऑडियंस का टेस्ट चेंज होता रहता है। अभी वेब सीरीज पे है तो फिर वापस फिल्म्स पे है। शॉर्ट फिल्म्स का अभी मेरे को इतना लगता नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो शॉर्ट फिल्म्स को अभी उस लेवल पे लेते नहीं है लोग। मैं भी फेस करता हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि छोटी फिल्म क्या बनाई है। मेरे को ये लगता है कि ड्यूरेशन एक मायने नहीं देता फिल्म का, आप क्या दिखाना चाहते हो वो आपके हाथ में है। अब आप किस तरीके से दिखा रहे हो, आप चाहे 10 मिनट लेके दिखा रहे हो, चाहे 1 घंटा लेके दिखा रहे हो, आपको वो दिखाना है, मतलब दिखाना है। उसमें ना कुछ कंजूसी करनी है, ना कुछ लालच रखना। आप जितना टाइम लेना चाहते ले, पर अच्छा दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटा ही बनानी है फिल्म को, नहीं, जरूरी नहीं है। यू कैन मेक अ 1 मिनट फिल्म ऑल्सो,
और जैसा मैंने तुमको बताया था 10 सेकेंड फिल्म भी आजकल फेसबुक इनिशिएट कर रहा है। तो फिल्म एक स्टोरी बताती है, वो कुछ कितना भी टाइम ले, टाइम डजंट मैटर। वो तो फिर आप आगे जाके नॉन फीचर फिल्म या फीचर फिल्म पर वर्क करना चाहते हो उस टाइम आप डिसीजन ले, पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन मेक अ 1 मिनट फिल्म ऑल्सो। Even the advertisement we see on TV is some kind of short films, we can say that. Yeah, we can say Because that. they are telling a story. Yeah. So, like, I this one question asked by plenty of people is that if I'm just new to this industry and I have no idea what to do and what not, so should I start doing it by itself or should I approach a mentor or any institution? See, अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो देन पहले आप थोड़ा नॉलेज लें, क्योंकि आप सीधा कैमरा उठाओगे और सक्सेस नहीं मिली तो आप फिर गिव अप कर दोगे। मतलब आप थोड़ा बेसिक नॉलेज लीजिए। लाइक आई ऑल्सो अटेंडेड सम FTI वर्कशॉप विच हेल्ड इन जयपुर। तो आप पहले वर्कशॉप में जाइए, जो मेंटोर है वो क्या बता रहे हो पहले बेसिक चीजें सीखिए। बेसिक्स सीखने के बाद और थोड़ा टेक्निकल पार्ट के बाद आप खुद करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो आने लग जाएगा। तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल पार्ट हुआ, बेसिक पार्ट कि आप कैमरा है कैसे हैंडल करना है, कैसे शूट करना है, क्या एडिटिंग है, वो सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। देन यू कैन स्टार्ट और टू इनिशिएट और आप कर सकते हो। There's one thing written by your short what the content does. So I like, as I said, that content is the real king no matter what you are doing. So how can someone improve the content? Like, I'm creating content from last 1 year and I always look upon to the new ideas by talking to people. So, but if I want to direct a film right now, even the short film, so how can I, approach the new ideas? मेन काम तो है आप घूमिए, आप लोगों की लाइफस्टाइल देखिए। लाइक जैसे अगर कोई एक्टिंग में जाना चाहता है तो उस एक्टर को कैसे गरीबों में कैसे रहता है वो एक्सपीरियंस वो देखे। अगर वो कोई महल में रहता है वो देखे। मतलब उसको हर चीज का पता होना चाहिए। अब जब वो किसी उसको फिल्म में काम मिलेगा और उसको कहे कि तेरे को गरीबी झोपड़ी में रहना है तो उसको आइडिया होगा, हाँ मैं उस झोपड़ी में था, मैंने देखा, तो वो उसको अच्छे से कर सकेगा। फिर उसको कहे कि आपको महल में रहना है तो वो महल में भी उसको याद आएगा, हाँ मैं महल में ऐसे रहता है, उस एटीट्यूड से रहता है, तो वो उसके लिए इजी हो जाता है क्योंकि वो उसको पता है, वो उस कंडीशन में रह चुका है। तो बीइंग अ कंटेंट राइटर यू कैन ट्रैवल, यू कैन एक्सप्लोर कि क्या क्या लोगों की लाइफ में हो रहा है, बी इट पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। आप एक्सप्लोर करिए और देखिए कि क्या क्या हो रहा है। देन क्योंकि And is it okay to copy ideas and mold it in your own way? कॉपी अगर आप इंटेंशनली कॉपी कर रहे हो तो वो गलत है। लाइक अब जैसे मैंने कंटेंट बनाया, यू थिंक नहीं मैं भी ये बनाऊंगा, यू मेड द सेम कंटेंट, तो वो गलत है। बाकी कोई अगर ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में बैठे एक जने ने कंटेंट बनाया और बॉम्बे में भी उसने सेम वैसा ही बनाया, अब वो उनको पता नहीं है, पर वो चीज फिर आप उसको, वो तो उन्होंने इनोवेट तो कर दिया। अब वो दोनों की क्रिएटिविटी अलग अलग होगी तो वो इम्प्लीमेंट अलग अलग होगा। आइडिया सेम है पर उसका जो आउटपुट होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के माइंडसेट अलग है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सो अपन देख सकते हैं कि कोई फिल्म्स बहुत होगी, कंटेंट और बेसिक प्लॉट सेम होता है पर उसको फिर इम्प्लीमेंट अलग अलग चीजों से कर देते हैं। So one thing my mentor always told me is that whosoever you like the most or you admire the most, just start copying them and be fucking proud of that. Because by the time you will add your own creativity. Like when it comes to मेरे हिसाब से तो कॉपी नहीं होता। कॉपी करना कि वो उन्होंने जो करा है वो कर लिया, वो आपका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप उस एक्सपीरियंस को लेके अलग बनाओ। आप ये मत सोचो, आप वहां तक की बाउंड मत रखो कि मेरे को मेरे मेंटोर जितना बनना है। मेंटोर तो बन लिए, अब आप वो नॉलेज लेके, वो एक्सपीरियंस लेके आगे तक बढ़ना है। अपनी लिमिट्स का है, ऐसा नहीं कि जिनसे आप सीख रहे हैं आप वहीं तक ही रुके कि नहीं इनके जैसा बनना है। आप नॉलेज लीजिए, आप उनसे
सीखिए, उनका एक्सपीरियंस लीजिए और देन आप बढ़ते जाइए। तो मेरे हिसाब से कॉपी करना जरूरी Like when it नहीं comes to public speaking, I always admire two people. Like one is Gary Vee and one is Raj Shamani. So to be honest, I used to copy them whenever I got opportunity to speak. And I've been doing this for a month right now. And right now I realize that by the time I added some of my own creativity. So if you are just copying them, then it is wrong. But if you are adding your creativity inside it, then it is like a cherry on the cake for. Yeah. Yes. So I want to ask that creating content, like there is a writer's block. Like whenever I write my speeches, I have something like I have no idea at all what to write and what not to write. So did you also face the situation where you don't have any idea, like what should I do right now? हाँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस हमेशा से डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी में ही रहा है। राइटिंग पार्ट में ना मेरा इतना इंटरेस्ट रहा, ना मैंने उसमें काम किया। तो मेरे पास तो कंटेंट मेरे को मिल जाए तो मैं बना दूं। अब हर चीज मैं कर लूं ये पॉसिबल है नहीं। कंटेंट भी मैं ही बनाऊं, फिल्म भी मैं आई एम अ डायरेक्टर, सो मैं हाँ कंटेंट को इमेजिन करके उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं ये बता सकता हूँ। तो या अलग अलग पार्ट है, कंटेंट वाला बनाने का अलग डिपार्टमेंट है, इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग है। सो या इट्स अ टीम वर्क। आप सोचो कि उन्मेष मित्तल ही लिख ले, उन्मेष मित्तल ही शूट कर ले, उन्मेष मित्तल ही एडिट कर ले और वही सब कर ले, तो वो गलत है। So I think मुस्कान asked the question, अगर मैं एंटर करती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, then how do I know कि मेरी इनिशियल लेवल पे जिन लोगों के साथ काम करूंगी तो मैं सेफ रहूंगी या नहीं रहूंगी? Like this is really nice question. सेफ रहने की बात तो यहाँ बैठे तो मैं तो बता नहीं सकता आप किससे काम करोगे या किसके साथ। अगर मैं क्या बताऊं इसमें कि यू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज कंटेंट, यार मैं तो कैसे बताऊं कि सेफ है कि नहीं, कॉज I think it's more depend on the personal experience. हाँ, अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है वो। Like you can't tell anything sitting right here. या अभी ये बॉम्बे जाके काम करे तो मैं यहाँ बैठे तो बता नहीं सकता यू आर वर्किंग विद अ गुड पर्सन या नॉट। So it is right that it is more on personal experience rather than saying anything. We can't say anything wrong or right about it right now. So there is one question Kaushik asked, how to promote your short films? How to promote social media, बेस्ट ऑप्शन है आजकल का प्रमोशन, मार्केटिंग और ये सब तो सोशल मीडिया बेस्ट है। मेक फिल्म, उनको डायरेक्टर जो बड़े हैं ट्राई टू सेंड देम टू फिल्म फेस्टिवल, बिकॉज फिल्म फेस्टिवल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो शॉर्ट फिल्म्स को लेते हैं, शॉर्ट फिल्म्स दिखाते हैं। तो यू कौशिक कैन डू दैट कि वो फिल्म फेस्टिवल्स को अप्रोच करे। देयर इज अ गुड वेबसाइट फॉर फिल्म मेकर्स कॉल्ड फिल्म फ्रीवे। उस फिल्म फ्रीवे पे जाके यू कैन गेट कनेक्ट टू फिल्म फेस्टिवल्स अक्रॉस द ग्लोब, ना केवल इंडिया के, पर आप बाहर फेस्टिवल्स देख सकते हैं, उनका क्या कंटेंट है, वो कैसी शॉर्ट फिल्म्स बन रही है, यू कैन चेक इट आउट। So I think one should also know little things about digital marketing. Like right now कर लोगे, काम करने के बाद दिखाना भी है, तो उसके लिए यू नीड टू डू मार्केटिंग एज वेल। Facebook ads, and I learned it from YouTube and from YouTube and Udemy. So if you have knowledge about how Insta or Facebook algorithm works, so you can target easily any audience. Like right now I'm targeting 15 to 20 age students. So and I'm getting good results, like the number of views, the number of the admired results I want. So I think one should know some little bit of digital marketing to promote your short films or any content you are producing. Yeah, films one, yeah.
So Ishan, let's move on to the third section, which is about short films. Like how do you see the future of short films in India as compared to Western countries? एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज तो अभी तक इंडिया में वो शॉर्ट फिल्म्स को उतना प्लेटफॉर्म अभी तक मिला नहीं है, मिल रहा है पर उतना नहीं मिल रहा जितना बाहर मिल रहा है. तो आई विश शॉर्ट फिल्म्स को और प्लेटफॉर्म मिले. अभी तो जैसे फिल्म फेयर हैज आल्सो स्टार्टेड अ न्यू कैटेगरी, दे आर मेकिंग फॉर शॉर्ट फिल्म्स को भी वो अवार्ड्स देना चालू करा है. रॉयल फ्लैग हैज आल्सो इनिशिएटेड फॉर शॉर्ट बैरल्स. तो हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है प्लेटफॉर्म उसके लिए, पर अब लेट्स सी कि उतना उसको उस लेवल पे अभी फीचर फिल्म लेवल पे कंपेयर नहीं कर रहा है, पर आई होप कि शॉर्ट फिल्म भी इस लेवल पे पहुंचे. सब लोग फीचर फिल्म बना नहीं सकते. अगर मेरे को इच्छा है तो आई नीड अ टीम, पर अगर मेरे वो नहीं कर सकता तो आई कैन मेक अ शॉर्ट फिल्म. And also there are many Facebook groups which are active, having thousands of members. So you can also promote your content there. Like there is a public speaking group I joined on Facebook. And some of them are so experienced and so insane speakers that before the speech I always look upon to them, like what should I do, what should I not. So using of Facebook groups is also a good way to promote your content and getting new ideas of the content. So, and I think apps like Quora is also when you are lack of content. Like whenever मुझे जब भी speech लिखनी है, so I always look upon to Quora. Like उस पे कैसे questions आ रहे हैं, and then I write my speeches. So as you said that writer's block को हटाने के लिए observe करो चीजें and all these kinds of stuff. But एक चीज होती है कि while shooting a film. Okay, so there is one question is that do we need a cast to shoot a film? No, जरूरी नहीं है. वो आपके प्लॉट पर डिपेंड करता है. Like I made a film called जयपुर मेरा शहर. तो उस फिल्म में कोई कास्ट नहीं थी. I just showcased the city of Jaipur through time lapse videos. तो वो जरूरी नहीं होता है कि आपके फिल्म में कास्ट हो या ना हो. That depends on your plot. अगर आप फिक्शन फिल्म बना रहे हैं या नॉन फिक्शन फिल्म बना रहे हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म में कास्ट है कि नहीं. So it is not compulsory to have a big cast to shoot a film. Yeah. So, like to sum up, I can say that for all the youngsters who need to start in this field, the first step is to start, no matter what. Yeah. And also, I figured out that while creating videos, I always have this one thing in my mind about the views and likes and comments. So I think that one should not care about the views, likes and comments you are getting on the content you are creating. Because the more you focus on that, the more creative less you become. हाँ, मैंने देखा है काफी लोगों को. लाइक उन्होंने काम चालू किया, सोचे यार इस पोस्ट पर 1000 लाइक आ जाए, 1000 फॉलोअर्स हो जाए. फॉलोअर्स डजंट मैटर. आप काम करो, चाहे आपके काम को एक जना देख रहा है तो भी मान लो कि आई एम सक्सेसफुल. वो एक जना भी आपकी कहानी देख रहा है तो आप चालू करिए. ये मत चिंता करिए कौन देखेगा, कैसे, कब देखेंगे. आप करते रहिए, लोग अपने आप देखेंगे. Like I got around 5,000 plus views on my first video on all social media platforms. But on my last 4 videos, I was not able to get even 500 views, I guess. So to be honest, that was discouraging in the beginning. But then I thought that it's the work I'm doing. Because I love doing it. So I should not focus on the likes, comments and views and just do it anyway. So Ishan, like to sum up, if all the youngsters can collaborate in this field, like if I want to decide a short film and I have one phone and the basic equipment, but I want to collaborate, like for example, I want to collaborate with you or someone who is doing the same kind of work. So how can I approach to him and what are the things should I say to him? See, अगर you are a content writer, so mostly you will make content.
कंटेंट बनने के बाद यू विल ऑब्वियसली अप्रोच अ डायरेक्टर। तो ऐसा नहीं आपने अब कहानी बनाई है तो पूरी कहानी सुनाओगे, नहीं, आप उसकी एक समरी बनाओगे उस प्लॉट की, एंड देन यू विल आप उस समरी को डायरेक्टर को सुनाओगे। अब यूं तो अपन एक्चुअल इसकी वर्किंग देखें तो इसका काम बहुत बड़ा है। डायरेक्टर फिर कास्टिंग डायरेक्टर को देखता है, कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट देखता है। तो अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो तो यू गिव अ कंटेंट टू अ डायरेक्टर, डायरेक्टर राइटर बैठ के कैन वर्क ऑन कास्ट कि अगर उस प्लॉट के लिए कास्ट चाहिए तो कैसा आदमी चाहिए, क्या चाहिए। दैट स्क्रिप्ट विल बी लेटर डिवाइडेड इनटू सीन, क्या सीन है, कितने शॉट है, उस सीन में क्या हो रहा है, किस इमोशन से हो रहा है, वो धीरे धीरे उसमें फिर बढ़ता रहता है। तो जैसा मैंने कहा, इट्स नॉट एन इजी जॉब। जो लोग सोचते हैं कि फिल्म बना ली, सबसे भारी काम फिल्म बनाना ही है, क्योंकि जो फिल्म बना रहा है, जो फिल्म डायरेक्टर है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है। अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, वो उसके हाथ में नहीं है। तो उसको एक ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है, पर वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, वो बहुत दिक्कत का काम होता है। So Isha, do you have some questions related to content so that I can answer? For content ये है कि मेन फोकस तुम्हारा किस टाइप ऑफ कंटेंट में है। लाइक कंटेंट तो है, पर किस टाइप पे, किस फॉर्म पे, क्या जॉनर है, क्या है। So there are 4 types of content according to me. First is information, where you're providing any information to the audience. Second is entertainment. Third is motivating, you can say that. And fourth is, which I'm doing, is connecting. Like I'm just telling my audience whatever happening in my life, and I'm trying to connect with them all. So my content mainly focuses to the students. Like I'm really a fucked up boy, to be very honest. So I try to create a small impact in the life of those students who are figuring out. And my motto is to tell others is that not all brains are made for academics. So my content, you can say this, infotainment, information plus entertainment. And to be very honest, I feel sometimes that I'm really lack of content. But just by observing others, what is happening around social media, I can easily, take the content and write it down and post it and create it. See, कंटेंट की कमी नहीं है, वो कहीं छिपी भी है इधर उधर। You just need to find it. आइडेंटिफाई करना है और ढूंढना है, क्योंकि कंटेंट की कमी ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी रहेगी। कोई अगर तो कंटेंट तो है, यू हैव टू वर्क, यू नीड टू सी कि कहाँ है, कैसे कर सकते हैं, और देन यू कैन स्टार्ट। एंड ईशान, लाइक अगर अभी तू ये सब नहीं कर रहा था, सो व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ? Like for example, if right now if I'm not doing public speaking, then I will definitely investing my time in playing cricket. And to be very honest, I'm not interested in doing studies. That's why I do something else than studies. So what is that one thing you will do? पढ़ने का मन तो मेरा भी नहीं होता है ना, पढ़ाई तो I would have been into the field of photography more. Like अगर मैं फिल्म मेकिंग में नहीं होता तो I would be doing mostly event photography. ज़्यादा से ज़्यादा I would be doing pre-weddings, और मैं उस फील्ड में ज़्यादा होता apart from film making. और I started photography in 6th. तो मैं अगर फिल्म मेकिंग में नहीं होता तो फोटोग्राफी एज अ बैकअप मेरे पास रहता, और खुद को खाली नहीं रखता। कुछ ना कुछ तो करते रहना है, खाली बैठने से मतलब ही क्या, बोर हो गए, कुछ ना कुछ करो। So I really want others to listen this thing, that importance of creating content in this time. Like we have that fear कि ये मेरे काम का नहीं है. But if you see closely around you, everything around you is a brand or just a piece of shit. So it is so important to build a personal brand in this time.
And there is a quote we used to listen that if you have money, then you can do anything. But if you see the current scenario, if you have audience, then you can do anything. Like if you have audience, you can easily do a startup. You can easily sell your products or your service or just add provide value into their life. So it is so important to create a personal brand right now in this 21st century. That's what I believe. एब्सोल्युटली जो टाइम पीरियड है इसको नेगेटिव ना लेके वी कैन टेक इन पॉजिटिव लाइक जो फिल्म्स बन रही थी अब लॉकडाउन में ये इनिशिएट हो गया है पीपल आर मेकिंग फिल्म्स फ्रॉम होम शॉर्ट फिल्म बनने लग गई है घर बैठे शूट घर पे हो रहा है सब वर्क घर पे हो रहा है तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आए आपको रुकना नहीं है आप करते रहो अब तुम कंटेंट बना रहे हो तो यू कैन मेक कंटेंट व्हाइल सिटिंग होम आल्सो आई एम अ फिल्म मेकर आई कैन मेक फिल्म्स व्हाइल सिटिंग होम तो आप रुके नहीं आप करते रहे प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी आपने को रुकना नहीं है बस एंड इन दिस क्रिएटिंग छुट्टियां हैं बैठे रहे नहीं ऐसा नहीं यू वर्क आप काम करते रहो एंड दिस इट इज द बेस्ट टाइम टू वर्क टाइम सो हाउ डू यू जिस फील्ड में भी जा रहे हो आप उस फील्ड के लिए काम करो सो हाउ यू आर फिगरिंग आउट द आइडियाज इन दिस टाइम आई एम फिगरिंग टू मेक अ फिल्म क्योंकि फ्री बैठे हैं सो जस्ट अ स्मॉल फिल्म आई वोंट डिस्क्लोज हियर बट अगर होता है अच्छे से इम्प्लीमेंट सो आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म राइट नाउ घर बैठे ही लेट्स सी अगर सक्सेसफुल होता हूँ उसमें तो like for me I just bought a Udemy course about public speaking and the stuff I'm doing and I'm really learning insane things from them. So I think this is the right time to invest in yourself rather than just sleeping and lying on bed all the time. So Ishan, like I think we can sum up by saying that for all the youngsters, that for all the kids like us who want to really want to do something in this field, first you need to start. Second what you said? स्टार्ट होने के बाद अगर आप सक्सेस नहीं यू नीड टू बी पेशेंट पेशेंस रखिए और करते रहिए सक्सेस आपके पास आएगी. So that's a really insane answer. And guys, one point I like to mention is that about the personal branding. Like after this live session, I will share a photo of one of my mentor, sharing his experience about the importance of personal branding in this 21st century. So like मैंने बहुत बार देखा है कि we used to feel like inferior in front. Like we have a kind of feeling मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया तो क्या होगा, दूसरे क्या सोचेंगे. So did you face anything like that? Fear of being judged by others when you started? ऐसा और अगर मैं यही सोचने लग जाता तो फिर काम ही नहीं कर पाता. यही सोचता कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो लोगों को तो सोचने दो, वो सोचेंगे. आप जो सोच रहे हो आप उस पर ही टिके रहो. आप सेटिस्फाई होने चाहिए. आपकी सोच अगर दूसरों की सोच से अगर सेम हो गई या उन्होंने आपकी सोच को चेंज कर दिया, then you won't be able to work. So Isha, your dad is writing is that रामायण टाइम नाउ. रामायण आ गया तो चलना घंटा भर हो गया पता ही नहीं चला. So I think we should sum up like here. Yes. And someone wrote Jai Corona. Oh, it's Badu. कंटेंट हो तो रामायण जैसा हो, लोग अपने आप खींचे आते हैं. I do agree with that. So last 3 points you want to give. Any related to this? मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास फोन है, रिसोर्सेज है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग. खुद को आइडल मत छोड़ो, काम करते रहो और किसी ना किसी दिन यू विल गेट अ सक्सेस फॉर श्योर. For sure. So, okay, Ishan, it was really insane while we're talking with you. And hope we also do the same thing in the near future. Sure. And I think it's your Ramayana time. We should leave right now. Yeah. And thank you so much, guys, who all joined and asked their questions. And if you have any questions related to film industry, then DM Ishan related to it.
And if you have any questions related to content creating, like the stuff I'm doing, then do DM me. And thank you again so much for joining us, joining this Thank live you, session. Unmet. Bye, 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 everyone. Bye.